خانیوال میں عوامی مارچ کے دوران آصفہ بھٹو زرداری ڈرون ٹکرانے سے زخمی ہو گئیں۔ ڈرون ٹکرانے سے آصفہ بھٹو کا ماتھا زخمی ہوا۔ آصفہ بھٹو کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ملتان روانہ کر دیا گیا۔ بلاول بھٹو نے اپنی اجرک اتار کر بہن کے زخم پر رکھی۔ بلاول بھٹو کی سیکیورٹی نے ڈرون آپریٹر کو تحویل میں لے لیا۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں خانیوال میں عوامی مارچ کے دوران آصفہ بھٹو ڈرون ٹکرانے سے زخمی ہو گئیں۔ ڈرون ٹکرانے سے آصفہ بھٹو کا ماتھا زخمی ہوا۔ آصفہ بھٹو کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ملتان روانہ کر دیا گیا۔ بلاول بھٹو نے اپنی اجرک اتار کر بہن کے زخم پر رکھی اور بلاول بھٹو کی سیکیورٹی نے ڈرون آپریٹر کو تحویل میں لے لیا ہے۔ خانیوال میں عوامی مارچ کے دوران آصفہ بھٹو ڈرون ٹکرانے سے زخمی۔ ڈرون ٹکرانے سے آصفہ بھٹو کا ماتھا زخمی ہوا۔ آصفہ بھٹو کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ملتان روانہ کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی اجرک اتار کر بہن کے زخم پر رکھی۔ بلاول بھٹو زرداری کی سیکیورٹی نے ڈرون آپریٹر کو تحویل میں لے لیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے انداز بھی نرالے۔ ظاہر خان نے اپنی مہران گاڑی کو پارٹی پرچم سے سجا دیا۔ پرچموں سے مزین گاڑی سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی سے آنے والے جیالے کا پارٹی سے محبت کا انوکھا اظہار۔ ظاہر خان نے اپنی مہران گاڑی کو پارٹی پرچموں سے ایسے سجایا کہ گاڑی نہیں بلکہ چلتا پھرتا پیپلز پارٹی کا پرچم ہو۔ جیالے نے گاڑی پر ساؤنڈ سسٹم بھی نصب کیا ہوا ہے، جس پر وہ پارٹی نغموں سے مارچ کے شرکاء کا لہو گرما رہا۔ ظاہر خان کا کہنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کا آج چھٹا روز ہے۔ ملک بھر سے آئے جیالوں نے رات خیمہ بستی ملتان میں پڑاؤ کیا۔ قافلہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ملتان سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ طیب سیف کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان کے مختلف مقامات پر قافلوں نے خیمہ بستی میں پڑاؤ کیا، جن میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے آئے لوگ شامل تھے۔ جیالوں نے رات ملتان کے ہوٹلز میں گزاری اور مرکزی جلوس میں شرکت کے لیے جوش و خروش سے روانہ ہوئے۔ ہم لوگ سندھ سے آئے، کشمور ڈسٹرکٹ سے بجرانی صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ اسلام آباد تک جائیں گے۔ جیالوں کا کہنا تھا وہ اپنے قائد کی آواز پر گھروں سے نکلے ہیں اور اسلام آباد تک بلاول بھٹو کے ساتھ جائیں گے۔ لانگ مارچ انشاءاللہ تعالی ہمارا کامیاب جائے گا اور عمران نیازی کو ہم انشاءاللہ تعالی ختم کر کے رہیں گے۔ جیالوں کا مزید کہنا تھا عمران خان نے مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا، جبکہ بلاول بھٹو کے آنے سے ملک ترقی کرے گا اور روزگار کے مواقع بھی ملیں گے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ طیب سیف، ملتان۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں 6 مارچ کو میلسی میں وزیراعظم عمران خان کے جلسہ کی تیاریوں کے حوالے سے پی ٹی آئی بورے والا کی جانب سے رہنما پی ٹی آئی چودھری ارشاد احمد آرائن کے فارم ہاؤس پر مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس کی ممبر ایڈوائزری کمیٹی جنوبی پنجاب نور خان بھابا کی زیر صدارت ہوئی، جس میں اجلاس میں پی ٹی آئی بورے والا کے سٹیک ہولڈر سمیت کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ 6 مارچ کو میلسی میں وزیراعظم عمران خان کے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے پی ٹی آئی بورے والا کی جانب سے رہنما پی ٹی آئی چودھری ارشاد احمد آرائن کے فارم ہاؤس پر مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس کی ممبر ایڈوائزری کمیٹی جنوبی پنجاب نور خان بھابا کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی بورے والا کے سٹیک ہولڈر سمیت دیگر کارکنان نے بھی شرکت کی۔ ملتان سمیت ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر 8 ارب 28 کروڑ روپے کا رمضان ریلیف پیکج تجویز دیا گیا ہے۔ رمضان پیکج کے تحت 19 اشیاء ضروریہ پر سبسڈی دینے کی تجویز دی گئی۔ پیکج کے تحت سب سے زیادہ سبسڈی گھی کے لیے مختص کرنے کی تجویز، گھی کے لیے 4 ارب 5 کروڑ روپے کی سبسڈی تجویز، آٹے پر 2 ارب 53 کروڑ 40 لاکھ جبکہ چینی پر 76 کروڑ، باسمتی چاول پر 2.5 کروڑ روپے کی سبسڈی تجویز کی گئی ہے۔ سیلا چاول 1 کروڑ، ٹوٹا چاول پر 3 کروڑ 60 لاکھ روپے کی سبسڈی تجویز، دال چنا پر 3 کروڑ، دال مسور پر 3 کروڑ جبکہ سفید چنے پر 5 کروڑ اور دیگر اشیاء پر 76 کروڑ 50 لاکھ روپے کی سبسڈی تجویز دی گئی ہے۔ گزشتہ سال 7 ارب 84 کروڑ 26 لاکھ روپے کا رمضان پیکج دیا گیا تھا۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، ملتان سمیت ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر 8 ارب 28 کروڑ روپے کا رمضان ریلیف پیکج تجویز۔ رمضان پیکج کے تحت 19 اشیاء ضروریہ پر سبسڈی دینے کی تجویز ہے۔ پیکج کے تحت سب سے زیادہ سبسڈی گھی کے لیے مختص کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ گھی کے لیے 4 ارب 5 کروڑ روپے کی سبسڈی تجویز، آٹے پر 2 ارب 53 کروڑ 40 لاکھ، چینی پر 75 کروڑ، باسمتی چاول پر 2.5 کروڑ روپے کی سبسڈی، سیلا چاول 1 کروڑ، ٹوٹا چاول پر 3 کروڑ 60 لاکھ روپے کی سبسڈی تجویز کی گئی، دال چنا 3 کروڑ، دال مسور 3 کروڑ، سفید چنے پر 5 کروڑ، دیگر اشیاء ضروریہ پر 76 کروڑ 50 لاکھ کی سبسڈی ہے، جبکہ گزشتہ سال 7 ارب 84 کروڑ 26 لاکھ روپے کا رمضان پیکج دیا گیا تھا۔
रुख करेंगे शहरी ओलिया का। शहरी ओलिया में मज़ारात के हवाले से अच्छी खबर है। मुल्तान की पहचान मज़ार हजरत शाह रुकन आलम की तज़ीनो आराइश का आगाज हो गया है। 1,30,00,000 रुपए के फंड से बहाली का काम 1 साल में मुकम्मल होगा। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। शहरी ओलिया में तारीखी मज़ारात की बहाली के लिए इकदामात। मुल्तान की पहचान मज़ार हजरत शाहरुख ने आलम की तज़ीनो आराइश शुरू कर दी गई। 1,30,00,000 रुपए के फंड जारी होने के 2 माह बाद मुरम्मती काम का आगाज किया गया। इस मज़ार का काफ़ी नाम सुना है और यहाँ पर तारीखी काम भी शुरू हो रहा है। बहुत अच्छे मज़ार हैं और खूबसूरत भी हैं। मज़ार के अहाते में टफ टाइल्स और 4 दीवारी की मरम्मत भी की जाएगी। दरबार शाहरुख ने आलम की बैरूनी दीवार है और हम यहाँ पे मरम्मत का काम कर रहे हैं और ये इसके साथ साथ हम टीप भी कर रहे हैं और इसके पार्किंग एरिया में हमने टस्सू लगाना है। कदीम मज़ार की तज़ीनो आराइश का काम 1 साल में मुकम्मल होगा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। मैको टीमों की बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां की गईं। एक रोज में 40 बिजली चोरों को पकड़ लिया गया। 9 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। 38,591 यूनिट्स बिजली चोरी करने पर 7 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। मुल्तान सर्कल में 3 बिजली चोरों को 70,000 से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया, जबकि डीजी खान सर्कल 18 बिजली चोरों को 2,24,000 जुर्माना आयद किया गया। 7 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। बिहाड़ी में बिजली चोर को 30,000, रहीम यार खान में 6 सारिफीन को 1,39,000 जुर्माना किया गया। मुजफ्फरगढ़ में 15 बिजली चोरों को 1,76,000 जुर्माना आयद किया गया है। आपको बताएं कि मैपको टीमों की बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई, जबकि एक रोज में 40 बिजली चोरों को पकड़ लिया। 9 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 38,591 यूनिट्स बिजली चोरी करने पर 7 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुल्तान सर्कल में 3 बिजली चोरों को 70,000 से ज्यादा जुर्माना आयद। डीजी खान सर्कल 18 बिजली चोरों को 2,24,000 जुर्माना। 7 मुकदमात दर्ज किए गए। बिहाड़ी में बिजली चोर को 30,000, रहीम यार खान में 6 सारिफीन को 1,39,000 रुपए जुर्माना किया गया। मुजफ्फरगढ़ में 15 बिजली चोरों को 1,76,000 जुर्माना आयद किया गया है। सीपीओ मुल्तान का शहर भर में पतंग बाजों के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद सख्ती लाने का हुक्म। सीपीओ की पतंगबाजी जैसे खतरनाक खेल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन लेने की हिदायत। पतंगबाजी की शिकायत पर कानून की गिरफ्त में लाने के लिए खुसूसी ऑपरेशन की भी हिदायत। सीपीओ का कहना था कि पतंगों और धाती डोर की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां की जाएंगी। वालिदैन अपने बच्चों को खतरनाक खेल से दूर रखें। सीपीओ मुल्तान का शहर भर में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद सख्ती लाने का हुक्म दिया गया है। सीपीओ की पतंगबाजी जैसे खतरनाक खेल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन लेने की हिदायत। पतंगबाजी की शिकायत पर कानून की गिरफ्त में लाने के लिए खुसूसी ऑपरेशन की भी हिदायत की गई है। सीपीओ का कहना था कि पतंगों और धाती डोर की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां की जाएंगी। वालिदैन अपने बच्चों को खतरनाक खेल से दूर रखें। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, पोलियो टीम पर तशद्दुद करने के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मरकजी मुल्जिमान को जेल भेज दिया गया है। अदालत ने मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद चमन और मोहम्मद आसिफ शामिल हैं। मुल्जिमान ने दरवाजे पर लिखने की वजह से पोलियो टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमे में तशद्दुद कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दिफात शामिल हैं। पुलिस थाना बीजेट ने मुल्जिमान को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं, पोलियो टीम पर तशद्दुद करने के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मरकजी मुल्जिमान को जेल भेज दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद चमन और मोहम्मद आसिफ शामिल। मुल्जिमान ने दरवाजे पर लिखने की वजह से पोलियो टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमे में तशद्दुद, कार्य सरकार में मज़ाहमत समेत दीगर दिफात शामिल की गई। पुलिस थाना बीसेट ने मुल्तान मुल्जिमान को वहां पर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। रहीम यार खान शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के साइकियाट्री डिपार्टमेंट के हवाले से 2 रोजा एकेडमिक मेंटल हेल्थ गाला 6 मार्च को होगा और मुल्की और गैर मुल्की 40 से ज्यादा साइकियाट्रिस्ट अपने तहकीकी मकाले पेश करेंगे। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए।
رحیم یار خان میں انسانی ذہن کی صحت کو برقرار رکھنے، ڈاکٹر اور مریضوں کے درمیان باہمی رابطہ کو بہتر کرنے کے لیے شیخ زاید میڈیکل کالج کے سکائٹری ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام 2 روزہ مینٹل ہیلتھ گالا 6 مارچ کو ہوگا۔ دنیا بھر سے بہترین اسپیکر آ کر مینٹل ہیلتھ پر اپنے مقالے پیش کریں گے۔ ہیڈ آف سکائٹری ڈپارٹمنٹ شیخ زاید میڈیکل کالج ڈاکٹر علی برہان مصطفیٰ نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ گالا میں 10 ورکشاپس، 15 سیشنز اور 1 سیمینار ہوگا۔ اس میں دنیا بھر سے، پاکستان اور غیر ملکی سے ہمارے بہترین سپیکرز یہاں تشریف لا رہے ہیں جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کریں گے۔ اس میں ورکشاپس ہیں، 10 ورکشاپس کی جا رہی ہیں، اس میں 15 کی نوٹ سیشنز ہیں اور 1 سیمینار ہے مینٹل ہیلتھ گیپ کے اوپر، اور ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے جو سائن کیا جائے گا شیخ زاید میڈیکل کالج کے سیکائٹری ڈپارٹمنٹ اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور رحیم یار خان کیمپس کے درمیان۔ ہیلتھ گالا میں شیخ زاید میڈیکل کالج سکائٹری ڈپارٹمنٹ اور اسلامی یونیورسٹی کے درمیان مینٹل ہیلتھ کی تربیت کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی ہوں گے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں ڈی ایس پی کوٹ ادو کی تھانہ سرور شہید میں کھلی کچہری۔ ڈی ایس پی کوٹ ادو سعادت چوہان نے کھلی کچہری میں آئے سائلین کے مسائل سنے۔ کھلی کچہری کے موقع پر ایس ایچ او ملک یونس سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کھلی کچہری میں انجمن تاجران، وکلاء برادری سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ چوک سرور شہید میں ڈی ایس پی کوٹ ادو کی تھانہ سرور شہید میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایس پی کوٹ ادو سعادت چوہان نے کھلی کچہری میں آئے سائلین کے مسائل سنے۔ کھلی کچہری کے موقع پر ایس ایچ او ملک یونس سمیت دیگر آفیسرز بھی موجود تھے۔ کھلی کچہری میں انجمن تاجران، وکلاء برادری سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میاں والی کو پولیو فری بنانے کے لیے پرعزم ہو گیا۔ میاں والی میں انسداد پولیو مہم اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ ہیلتھ انتظامیہ نے 3,54,777 بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا ہدف پورا کر لیا۔ پاکستان سے پولیو کا جڑ سے ہوگا یقینی خاتمہ۔ میاں والی میں آخری اور چوتھے روز قومی انسداد پولیو مہم اختتام پذیر ہو گئی۔ ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے 1,114 موبائل ٹیمیں، 75 فکس جبکہ 37 ٹیمیں جنرل بس سٹینڈ اور مختلف مقامات کے لیے تشکیل دی گئی۔ حکومت کی جانب سے 3,54,777 بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا ہدف دیا گیا، جسے محکمہ صحت میاں والی نے بھرپور محنت کر کے پورا کیا۔ ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے میاں والی کو پولیو فری بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ہائی کورٹ بار ملتان کے نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کہتے ہیں ملتان میں سروسز ٹریبیونل کے مستقل قیام سے سائلین کو جلد داد رسی ملے گی۔ ماہر عمران کی رپورٹ دیکھیے۔ ایز ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان do solemnly affirm to fulfill my duties and obligation in my full capacity with integrity. ہائی کورٹ بار ملتان میں تقریب حلف برداری منعقد ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے وکلاء سے خطاب میں کہا کہ بار اور بینچ کے بہتر تعاون سے سب سے زیادہ فائدہ سالین کو ہوتا ہے۔ خوش ہوں کہ بہت سارے ان کے خیالات سن کر مجھے اچھا لگا، اور یقیناً ہم ان باتوں کو آگے لے کر چلیں گے، اور انشاءاللہ عزیز اس بار کی سسٹم کی فلاح کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم مل کر کام کریں گے۔ ہائی کورٹ بار کے نو منتخب صدر میاں عادل مشتاق اور جنرل سیکرٹری ارشد حسین بھٹی کا کہنا تھا کہ 27 بارز کے صدور اور جنرل سیکرٹریز ملتان بار آئے ہیں۔ معزز بار کے ممبر رہ چکے بلکہ آفس بیرر بھی رہے ہیں، اس لیے وکلاء کی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ آپ کی بار سے والہانہ محبت اور لگاؤ ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم جب بھی آپ کے پاس اپنے مسائل کی داد رسی کے لیے حاضر ہوں گے، آپ ہماری دلجوئی فرمائیں گے۔ آپ جتنی بہنیں یہاں موجود ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ میرے لیے انتہائی محترم سر حبیب اللہ شاکر صاحب بیٹھے ہیں، ممبران پنجاب بار کونسل میں رانا طفیل نون صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی سجاد ٹانگرا صاحب بھی اس فنکشن میں موجود ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔
जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक, जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस तारिक नदीम, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान मोहम्मद अकमल खान, साबिक सदूर और खवातीन वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के इख्तिताम पर ओहदेदारान को एजाज़ी शील्ड्स भी दी गई। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साहबजादा हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी की कोर्ट अदू आमद हुई। हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी ने रूहानी और आलमी शख्सियत अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी के दरबार पर हाजिरी दी। डिविजनल नायब सदर तहरीक इंसाफ मुफ्ती ज़ुहैबुल हसन की परहारवी के बहनोई की कुरान खानी में शिरकत भी की गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साहबजादा हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी की कोर्ट अदू आमद। हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी ने रूहानी और इल्मी शख्सियत अल्लामा अब्दुल अजीज परहाड़वी के दरबार पर हाजिरी दी। डिविजनल नायब सदर तहरीक लब्बैक मुफ्ती ज़ुहैबुल हसन की परहाड़वी के बहनोई की कुरान खानी में शिरकत की गई। चीफ कंजर्वेटर महकमा जंगलात जनूबी पंजाब अतर खग्गा कहते हैं कि जनूबी पंजाब में साल 90 लाख पौधे लगाने का बड़ा टारगेट मिला है। गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी टारगेट्स हर सूरत पूरे किए जाएंगे। मोहसिन उल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए महकमा जंगलात मुतहरिक चीफ कंजर्वेटर महकमा जंगलात जनूबी पंजाब अतर खग्गा ने रोही को बताया कि जनूबी पंजाब में इस साल हुकूमत की जानिब से 90 लाख पौधे लगाने का बड़ा टारगेट मिला है। प्लांटेशन टारगेट को चैलेंज समझकर पूरा करेंगे। अल्लाह की करम नवाजी से और अपनी कमिटमेंट और डेडिकेशन से ये सारे टारगेट अचीव हुए हैं, होंगे, आगे भी होंगे। और वो जो अभी मैंने एक देखा है कि जी वो पिछले जो पौधे लग जाते हैं उसकी मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। बिल्कुल मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कर रही है 95% सक्सेस रेट है। अतर खग्गा का कहना था कि गुज़िश्ता साल महकमा जंगलात ने जनूबी पंजाब में अपने टारगेट 100% पूरे किए हैं। इस बार भी अहदाफ हर सूरत पूरे किए जाएंगे। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट समझते हैं। पिछला जो मौसम बरसात का सीजन गुजरा है तो जो मेरे जोन का टारगेट था वो कोई 13 मिलियन था और जो मैंने 99.3% अचीव करके एक रिकॉर्ड कायम किया। अतर खग्गा का मजीद कहना था कि लगाए जाने वाले पौधों की निगहदाश्त भी की जा रही है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। शहर औलिया के बासियों को मिलेगी फर्नीचर की तमाम वैरायटी। अपनी पसंद का फर्नीचर मुनासिब कीमतों पर एक ही छत तले। होम डेकोर फर्नीचर एक्सपो की जानिब से 3 रोज़ा फर्नीचर एक्सपो का आगाज कर दिया गया है। 50 से ज़ायद ब्रांड्स ने शिरकत की। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। शहर औलिया के बासियों के लिए मुनासिब कीमतों में फर्नीचर खरीदने का सुनहरी मौका आन पहुंचा। होम डेकोर फर्नीचर एक्सपो की जानिब से DHA अरीना में 3 रोज़ा फर्नीचर एक्सपो शुरू कर दी गई, जिसमें 50 से ज़ायद ब्रांड्स ने शिरकत की। फर्नीचर एक्सपो में तमाम फर्नीचर्स पर 50% तक रियायत दस्तयाब है। यहाँ पे हर तरह का फर्नीचर मौजूद है, घर से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, शादियों से रिलेटेड। इसके अलावा डेकोरेशन का काफ़ी सामान है जिसमें आपको कारपेट, रग्स, डेकोरेटिव एसेसरीज मिल रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक छत के नीचे पूरे पाकिस्तान से 50 कंपनियां आई हैं और अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेके आई हैं और इस पे उन्होंने 50% तक की रायत 3 दिन में अनाउंस की हुई। डायरेक्टर होम डेकोर अदनान अफजल का कहना था कि ये फर्नीचर एक्सपो जीरो हेल्थ केयर पाकिस्तान की जानिब से स्पॉन्सर किया गया। मुल्तानियों की जानिब से फर्नीचर को बेहद सराहा गया है। जैसे कि हमारी ये प्रोडक्ट है जीरो हेल्थ केयर के पास मसाज इक्विपमेंट है, ये हेल्थ वेलनेस के हवाले से हैं, तो रिस्पॉन्स माशाल्लाह में अच्छा मिल रहा है यहाँ के। जीरो बियॉन्ड वेलनेस के CCO अजीम उल्लाह का कहना था कि मुल्तान के अवाम फर्नीचर एक्सपो से मुस्तफीद हो रहे हैं और रियायत से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। और अभी आपको बताएं कि अवामी मार्च के दौरान आसिफा भुट्टो ड्रोन कैमरा लगने से जख्मी हो गई। आसिफा भुट्टो को मुख्तार ए शेख ट्रस्ट अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आसिफा भुट्टो को सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल से मुंतकिल किया गया, जहां पर आसिफा भुट्टो वापस लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अवामी मार्च के दौरान आसिफा भुट्टो ड्रोन कैमरा लगने से जख्मी हुई। आसिफा भुट्टो को मुख्तार ए शेख ट्रस्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आसिफा भुट्टो को सख्त सिक्योरिटी में हॉस्पिटल से मुंतकिल किया गया। आसिफा भुट्टो वापस लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगी। अभी आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि अवामी मार्च के दौरान आसिफा भुट्टो ड्रोन कैमरा लगने से जख्मी। आसिफा भुट्टो को मुख्तार ए शेख ट्रस्ट अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आसिफा भुट्टो को सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल से मुंतकिल किया गया है, जबकि आसिफा भुट्टो वापस लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगी। लॉन्ग मार्च के दौरान जब बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे, अपने जलसायाम से खिताब के दौरान
ड्रोन कैमरा अवामी मार्च के दौरान आसिफा भुट्टो के सर पर जा लगा और माथा जख्मी हो गया, जिसकी बिना पर उनको अस्पताल रवाना किया गया था। आसिफा भुट्टो को मुख्तार ए शेख ट्रस्ट अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अवामी मार्च की कवरेज के दौरान ड्रोन आसिफा भुट्टो जरदारी से जा टकराया था। आसिफा भुट्टो को माथा उनका जख्मी हो गया, जिस पर उनको मुल्तान रवाना कर दिया गया। बिलावल भुट्टो ने अजरक उतारकर बहन के जख्म पर रखी। बिलावल भुट्टो जरदारी की आसिफा भुट्टो की बहादुरी की तारीफ भी की गई। और अभी आपको बता रहे हैं कि अवामी मार्च के दौरान आसिफा भुट्टो ड्रोन कैमरा लगने से जख्मी हुई थी। आसिफा भुट्टो के माथे पर जख्म आए। आसिफा भुट्टो को मुख्तार ए शेख ट्रस्ट हॉस्पिटल से इस वक्त डिस्चार्ज कर दिया गया है। आसिफा भुट्टो को सख्त सिक्योरिटी में हॉस्पिटल से मुंतकिल किया गया। आसिफा भुट्टो वापस लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगी। आपको बताएं कि अवामी मार्च के दौरान आसिफा भुट्टो ड्रोन कैमरा लगने से जख्मी हुई थी। जब बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मार्च से खिताब कर रहे थे तो ड्रोन कैमरा शॉट लेते हुए डायरेक्ट जाकर आसिफा भुट्टो के माथे पर जा लगा। माथा जख्मी होने की बिना पर फिल 4 उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से अपनी अजरक उतार कर उनके माथे पर रखी गई और उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुख्तार ए शेख ट्रस्ट अस्पताल पे उनको इलाज मुआवजा की सहूलत फराहम की गई, जबकि अभी आसिफा भुट्टो को वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आसिफा भुट्टो को सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल से मुंतकिल किया गया है। आसिफा भुट्टो एक बहादुर खातून हैं, इस हवाले से उनकी तारीफ की गई है बिलावल भुट्टो की जानिब से, जबकि आसिफा भुट्टो वापस लॉन्ग मार्च में दोबारा से शिरकत करेंगी। अवामी मार्च के दौरान आसिफा भुट्टो ड्रोन कैमरा लगने से जख्मी हुई। आसिफा भुट्टो के माथे पर जख्म आए। आसिफा भुट्टो को मुख्तार ए शेख ट्रस्ट अस्पताल से अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो ने अजरक उतारकर बहन के जख्म पर रखी। बिलावल भुट्टो जरदारी की आसिफा भुट्टो की बहादुरी की तारीफ भी की गई। कहा पता नहीं जानबूझकर गलती की या उनके सर पर ड्रोन लगा है। वो जख्मी हुई हैं लेकिन उनका अज़्म जवान था। अवामी मार्च की कवरेज के दौरान ड्रोन आसिफा भुट्टो से जा टकराया। आसिफा भुट्टो का माथा जिसकी वजह से शदीद जख्मी हो गया, जिसके बाद उनको मुल्तान रवाना कर दिया गया। बिलावल भुट्टो ने अजरक उतारकर बहन के जख्म पर रखी। और अभी ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि आसिफा भुट्टो को डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से। आसिफा भुट्टो अब दोबारा लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगी। अवामी मार्च के दौरान आसिफा भुट्टो ड्रोन कैमरा लगने से जख्मी हो गई थी। आसिफा भुट्टो के माथे पर जख्म आए थे और अब आसिफा भुट्टो को मुख्तार ए शेख ट्रस्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डीजी खान में डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिस के ज़ेरे एहतमाम पहली जश्न बहारां साइकिल रेस। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान ने साइकिल रेस का बाकायदा इफ्तिताह किया है। रेस गाजी घाट पुल से गुल जमीन तक लगाई गई। डेरा गाजी खान के मोहम्मद वाजिद ने पहली और पोजीशन हासिल की। मुल्तान के उमर भुट्टा ने दूसरी पोजीशन हासिल की। पोजीशन होल्डर्स में ट्रॉफीज, मेडल्स, कैश अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। रेस में डीजी खान डिवीजन समेत जनूबी पंजाब के 50 से जायद साइकिलिस्ट ने शिरकत की। मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमीनेसी में पंजाब गेम्स के लिए खिलाड़ी जीत तोड़ प्रैक्टिस में मसरूफ हैं, जबकि कोच भी खिलाड़ियों की जीत के लिए पुरुम्मीद दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं माज बिन शफीक से। जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिम्नेजियम में हमेशा की तरह इस वक्त भी खिलाड़ियों की रौनकें बहाल हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिम्नेजियम के बैडमिंटन वाले हिस्से पर, जहां पर खिलाड़ी पंजाब गेम्स के लिए जी तोड़ मेहनत में मसरूफ़ हैं और प्रोफेशनल कोचिंग ले रहे हैं। हमारे साथ कोच मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कितने खिलाड़ी जो हैं मुल्तान से खेल रहे हैं और कैसी प्रैक्टिस चल रही है? मुल्तान से कोई 15 खिलाड़ी हैं हमारे और बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है। इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस शो करेंगे बच्चे, तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह टूर्नामेंट को जीतें। हाँ जी बिल्कुल, जो है वो कोचेस की जानिब से यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मुल्तान में प्रैक्टिस करने वाले बच्चे जो हैं वो पंजाब गेम्स में अपना नाम रोशन करेंगे और मुल्तान का नाम रोशन करेंगे। हमारे साथ खिलाड़ी भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसी प्रैक्टिस चल रही है? माशाल्लाह मैक्सिमम 1 मंथ से हमारी प्रैक्टिस चल रही है और बहुत अच्छी जा रही है। इंशाल्लाह हमारी अच्छी प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह विन करके आएंगे। जानिब से भी इसी उम्मीद और अज़म का इजहार किया जा रहा है कि वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह ताला वही चैंपियनशिप। सही माज, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।